Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In this video we will talk about chemical properties of metals and nonmetals and some other topics. So let's begin. First thing, chemical properties of metals and nonmetals. Nonmetals form acidic or neutral oxides on reacting with O2. Acidic oxides dissolve in water to form acid. नॉन-मेटल्स एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं O2 के साथ रिएक्ट करके। ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी नॉन-मेटल रिएक्ट करेगा तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा, जिनमें से एसिडिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन-मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद एयर फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन रिएक्शन विद वाटर CO2 फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट एयर CO2 रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनसफिशिएंट एयर होती है तो रिएक्शन पूरा नहीं होता है और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। C+O2 विल गिव CO2। जब CO2 रिएक्ट विद वाटर तो गिव कार्बोनिक ऑक्साइड विच इज H2CO3, and then 2C plus O2 when oxygen is not sufficient, then forms 2C plus O2 will give 2CO, which is carbon monoxide, which is more poisonous than carbon dioxide. Sulfur when burnt in air forms sulfur dioxide, which on reaction with water forms sulfurous acid. S plus O2 will give SO2, reaction of sulfur with oxygen. When this sulfur dioxide SO2 reacts with water, it forms H2SO3, which is sulfurous acid. H2SO3. SO2 plus H2O will give H2SO3. Hydrogen reacts with air to form neutral oxide called water. Hydrogen or oxygen reaction to H2 plus O2 will give 2H2O, which is water. Next, reaction of non-metal with water and diluted acids. Non-metals do not react with water and dilute acids. कोई भी non-metal water या किसी dilute acid के साथ react directly नहीं करता है. Reaction of non-metal with salt solution. A more reactive non-metal replaces a less reactive one. जब भी किसी non-metal का reaction किसी salt solution के साथ होगा तो जो more reactive metal है non-metal है वो less reactive non-metal की जगह ले लेगा. Example 2NaBr plus Cl2 will give 2NaCl plus Br2. यहाँ पर जो Br है it has been replaced by Cl2. More reactive replaces less reactive. So 2NaBr plus Cl2 will give 2NaCl plus Br2. Reaction of non-metal with chlorine. They form covalent chloride which are non-electrolytes. Non-electrolyte होते हैं और covalent chloride बनाता है H2 plus Cl2 will give 2HCl. These are non-electrolytes. Next come reaction with non-metals with hydrogen. Non-metal का reaction with hydrogen कैसे होगा? Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. Hydrides बनते हैं H2 plus S will give H2S. Then N2 plus 3H2 will give 2 ammonia, 2 NH3, which is ammonia. These are covalent hydrides, compounds of hydrogen. Now we talk about uses of metals and non-metals. Copper and aluminium are used to make electric wires. Iron, copper and aluminium are used to make utensils. Iron is used as a catalyst in ammonia preparation. Zinc is used for galvanization of iron. Chromium and nickel are used for electroplating. Zinc, zirconium, titanium and sodium are used in atomic energy. These are the uses of metals. हम देख रहे हैं कि अपनी डेली लाइफ में कई जगह यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं, डेली लाइफ यूज़ भी हैं और एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं हम आयरन को in forming another product called ammonia. Then uses of non-metals. Hydrogen is used in making vegetable ghee, which is actually organic chemistry reaction. Then liquid hydrogen used as rocket fuel. हाइड्रोजन का लिक्विड फॉर्म जो है वो रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है. कार्बन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स. रिएक्शन यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोड्स, उसको बनाने में कार्बन यूज़ होता है. Then compounds of nitrogen TNT is used as explosives. TNT जो है explosive के form में use होते हैं compounds of nitrogen. Then sulfur is used in making
gunpowder, and sulfur is also used in vulcanization of rubber. यानी कि जो रबर अवेलेबल होता है फ्रॉम ट्रीज उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि टायर वगैरह उससे बनते हैं, उस प्रोसेस में हम सल्फर यूज़ करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट कम इलेक्ट्रॉनिक नेचर. Atoms of all elements except noble gases have an incomplete outermost shell. Noble gases have their outermost shell complete and hence they are non-reactive or inert. सभी एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट होता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है उनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती हैं. जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है वही जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं easily with other elements to complete their outermost shell. Most elements are reactive and try to achieve the stability of the noble gas or inert gas by electron transfer or by electron sharing. जो अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं. मतलब जिनके एलिमेंट्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो कम हैं, वो और इलेक्ट्रॉन्स ले करके अपने आप को स्टेबल करते हैं. और जिनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से थोड़े ज़्यादा एलिमेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल करते हैं अपने आप को. तो हर एक एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करके अपने आप को एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक लाना चाहता है. एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2,8 नोबल गैस नियरेस्ट नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लेता है. सिमिलरली क्लोरीन 287 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 288 यानी कि आर्गन का जो एक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबिलिटी वाला, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेता है. ये करने के लिए या तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या फिर आपस में शेयर करते हैं. 3 तरीके से होता है. एलिमेंट्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल्स होते हैं. दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा. द एलिमेंट्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जो एलिमेंट्स उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स. दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, गेन करेंगे तो चार्ज नेगेटिव आएगा उनके ऊपर. मेटल्स have 1 to 3 electrons in the outermost shell of their atom and non-metals have 4 to 8 electrons in the outermost shell. मेटल्स के outermost shell में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं. क्योंकि अगर 3 एलिमेंट होंगे और नोबल गैस के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से आसान है 3 या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना. इसलिए दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली नॉन मेटल जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है rather than 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना. इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं. देयर आर 2 exceptions of this rule, hydrogen and helium. Hydrogen is the non-metal having 1 electron in the valence shell and helium-2 is an inert gas having 2 electron in the valence shell. हाइड्रोजन और हीलियम अकेले 2 एलिमेंट हैं जो इस रूल से बाहर है क्योंकि उनका ऑक्टेट नहीं होता है. उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हाइड्रोजन में 1 होता है, 1 की कमी है, उसे पूरा करने का रिएक्शन करेगा. और हीलियम इनर्ट है, नोबल गैस है, जिसमें कि 2 एलिमेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 8 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 नहीं होते. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपके काम का था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.